नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जापान के बारे में कुछ अद्भुत तथ्यों की बात करेंगे। जापान, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, is known for its unique culture, technological advancements, and breathtaking landscapes. But beyond its popular image lies a treasure trove of fascinating facts that often go unnoticed. So get ready to have your minds blown as we delve into 18 unbelievable facts about Japan that will leave you surprised and wanting to learn more. Let's kick things off with geography, shall we? आप जानते हैं जापान, the island nation है ना? But did you know it's made up of over 6,800 islands? That's right guys, 6,800. It's like a whole archipelago party going on over there. Now obviously not all these islands are inhabited. कुछ तो बस समुद्र में छोटे-छोटे बिंदु हैं. But the main ones, the big boys, are Honshu, Hokkaido, Kyushu and Shikoku. ये 4 आइलैंड्स मिलकर जापान के टोटल लैंड एरिया का लगभग 97% बनाते हैं। Imagine the diversity, the cultures, the stories hidden within these islands. It's mind-blowing to think about the sheer scale of this island nation. All right, next up, let's talk about something close to everyone's heart, karaoke. हम सब ने कभी ना कभी karaoke तो किया ही होगा, है ना? But did you know the word karaoke itself is Japanese? ये बना है कारा से, जिसका मतलब है एम्प्टी, और ओके मीनिंग ऑर्केस्ट्रा। तो बेसिकली कराओके का मतलब हुआ एम्प्टी ऑर्केस्ट्रा। इट्स लाइक द यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू फिल दैट एम्प्टी स्पेस विद योर अमेजिंग वॉइस। और यकीन मानो दोस्तों, जापानीज लोग अपने कराओके को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनके पास डेडिकेटेड कराओके बॉक्सेस होते हैं, प्राइवेट रूम्स जहां आप बिना किसी झिझक के गाना गा सकते हैं। Now let's talk about something truly remarkable, longevity. Japan consistently ranks among the countries with the highest life expectancy globally. औसतन Japanese लोग लगभग 85 years तक जीते हैं. That's incredible, right? उनका secret क्या है? Well, it's a combination of factors, seafood और vegetables से भरपूर healthy diet, community and social connections पर जोर, और बेशक एक top-notch healthcare system. Okay. Let's shift gears and talk about something that screams efficiency, the Japanese railway system, specifically the Shinkansen or the bullet train. अब अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आपको समय की बहुत कीमत होगी. And let me tell you, the Japanese take punctuality to a whole new level. उनकी ट्रेन्स अपने समय पर चलने के लिए फेमस हैं, like literally to the second. सोचो, एक ऐसा ट्रेन नेटवर्क जो इतना एफिशिएंट हो कि डिलेज सेकंड्स में मेजर किए जाते हैं, मिनट्स या आवर्स में नहीं. It's a testament to their commitment to precision, their dedication to keeping things running smoothly. Now, for a slightly more intense fact, Japan experiences over 1,500 earthquakes every year. Yeah, you heard that right, 1,500. ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल ऊपर स्थित है, एक ऐसा जोन जो अपनी सीस्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है. But here's the thing. जापानीज लोगों ने खुद को ढाल लिया है. उन्होंने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी बिल्डिंग्स, अपने जीने के तरीके में शामिल कर लिया है. यहां तक कि उनके यहां बचपन से ही अर्थक्वेक ड्रिल्स होते हैं. इट्स अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन रेजिलियंस, आवर एबिलिटी टू अडैप्ट एंड थ्राइव इवन इन द फेस ऑफ नेचुरल चैलेंजेस. Let's switch gears again and talk about something beautiful and serene, ikebana, the Japanese art of flower arrangement. अब ये बस कुछ सुंदर फूलों को फूलदान में रखने जैसा नहीं है. It's a whole philosophy, a way of life. Ikebana harmony, balance और simplicity पर focus करता है. It's about appreciating the natural beauty of flowers and arranging them in a way that evokes a sense of peace and tranquility. All right, back to the topic of longevity. हमने जापान की हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात की, लेकिन यहाँ एक और भी रिमार्केबल बात है. जापान में 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 इयर्स से भी ज्यादा है. That's a whole lot of centenarians. सोचिए उनका विजडम, उनके एक्सपीरियंसेस, उन स्टोरीज के बारे में जो ये लोग अपने साथ रखते हैं. Okay, let's talk about something delicious, ramen. ये स्वादिष्ट नूडल सूप जापान में बहुत फेमस है और अच्छी वजह से. It's hearty, it's flavorful, and it's incredibly satisfying.
Now, let's step into the ring and talk about sumo wrestling, Japan's national sport. ये प्राचीन कुश्ती का रूप 1500 साल से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है और परंपरा और रस्मों में डूबा हुआ है। ये सिर्फ दो बड़े व्यक्तियों के एक दूसरे को रिंग से बाहर धकेलने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। It's about technique, strategy, and a deep respect for the sport and its history. याद है, हमने बात की थी जापान में 6,800 से ज्यादा आइलैंड्स हैं? तो पता है क्या? उन आइलैंड्स में से 6,000 से ज्यादा आइलैंड्स पर कोई नहीं रहता। That's a whole lot of untouched nature, guys. सोचिए, उन एडवेंचर्स के बारे में जो इन डिजर्टेड आइलैंड्स पर आपका इंतजार कर रहे हैं। The pristine beaches, the lush forests, the untouched ecosystems. It's like stepping back in time, exploring a world untouched by human hands. Alright, let's talk about something you don't hear every day. Typhoons hitting subway systems. देखिए, टाइफून्स कोई मजाक नहीं होते। ये पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो बहुत डैमेज कर सकते हैं। और 1981 में जापानीज सिटी फुकुओका को इसका एक्सपीरियंस हुआ जब टाइफून थेल्मा ने यहां तबाही मचाई, जिससे भयानक बाढ़ और डैमेज हुआ। यहां तक कि उनका सबवे सिस्टम भी प्रभावित हुआ। It's a reminder of the raw power of nature, how even our most advanced infrastructure can be vulnerable to the forces of the natural world. Okay, let's talk about something that can be a bit tricky when traveling, tipping etiquette. अब दुनिया के कई हिस्सों में टिपिंग एक्सपेक्टेड है, यहां तक कि मैंडेटरी भी। लेकिन जापान में इसके उल्टा होता है। जापान में टिपिंग कस्टमरी नहीं है और कुछ मामलों में इसे रूड भी माना जा सकता है। जापानीज लोग एक्सीलेंट सर्विस को एक स्टैंडर्ड मानते हैं, न कि ऐसी चीज जिसे एक्स्ट्रा मनी देकर इंकरेज किया जाए। वापस ज्योग्राफी की ओर। हमने जापान के कई आइलैंड्स के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापानीज आर्चिपेलागो उत्तर से दक्षिण तक 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है? That's like the distance from Delhi to Chennai, guys. सोचिए उन डाइवर्स क्लाइमेट्स एंड लैंडस्केप्स के बारे में जिनका आप सामना करेंगे, होक्काइडो के सबसे उत्तरी सिरे से ओकिनावा के सबसे दक्षिणी द्वीपों तक की यात्रा करते हुए। Alright, let's talk about something that speaks to the heart of Japanese culture, tradition and longevity. और इसे इलस्ट्रेट करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी के बारे में बात करें, जो आज भी ऑपरेशन में है, निशियामा ओनसेन केउन का। यह पारंपरिक जापानीज इन या रियोकन 705 AD से ऑपरेशन में है। That's right, guys, 705 AD। यह 1300 सालों से मेहमानों का स्वागत कर रहा है। सोचिए उस हिस्ट्री, उन स्टोरीज, उन जनरेशंस के बारे में जो इस अविश्वसनीय एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे से गुजरे हैं। All right, music lovers, this one's for you. जापान का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजिक मार्केट है, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। जे पॉप से लेकर क्लासिकल म्यूजिक तक, ट्रेडिशनल जापानीज इंस्ट्रूमेंट से लेकर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बीट्स तक, जापान में एक डाइवर्स एंड वाइब्रेंट म्यूजिक सीन है जो हर किसी के टेस्ट को पूरा करता है। ओके, एनिमल लवर्स, दिस वंस फॉर यू। जापान में एक आइलैंड है जिसे ओकुनोशिमा कहा जाता है, लेकिन इसे आमतौर पर रैबिट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और हां, आपने सही अनुमान लगाया, यह प्यारे बनीज से भरा हुआ है। इस द्वीप पर सैकड़ों मिलनसार खरगोश स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, एक ऐसी पॉपुलेशन के रेमनेंट्स जिन्हें दशकों पहले यहां लाया गया था। अब वे यहां का मुख्य आकर्षण हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, hopping and nibbling to their heart's content. Imagine being surrounded by hundreds of fluffy bunnies, their noses twitching, their ears perked up. Alright, let's talk about something relatable, fast food. और जब फास्ट फूड की बात आती है तो मैकडॉनल्ड्स एक ग्लोबल आइकॉन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जापान में दुनिया में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स की संख्या दूसरी सबसे ज्यादा है? That's right, guys. जापान में 3000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स फैले हुए हैं। It's like they're on every corner, serving up Big Macs and fries to a nation that can't get enough. Last but not least, let's talk about something awe-inspiring and a little bit intimidating: volcanoes. जापान में 200 से ज्यादा वॉल्केनोज हैं, जिनमें से 108 को एक्टिव माना जाता है।
ये फायरी जायंट्स पृथ्वी की सतह के नीचे काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाते हैं, लेकिन वे अपनी मैजेस्टिक पीक्स और स्टीमिंग क्रेटर्स के साथ सुंदरता का स्रोत भी हैं। Imagine witnessing a volcanic eruption in Japan, the glowing lava flows, the plumes of smoke billowing into the sky. So there you have it, guys. 18 unbelievable facts about Japan that prove this country is anything but ordinary. अपने हजारों द्वीपों से लेकर अपनी प्राचीन परंपराओं तक, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से लेकर अपने यूनिक कल्चरल क्वर्क्स तक, जापान हमेशा अमेज करता रहेगा। Am I the only one who needs more NoobTube in their life? Hit like if you laughed, share if you loved, and don't forget to subscribe for more epic